بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کات اور لمبی عمر والے تھے، لیکن ایمان اور عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر، شرک، جہالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑنے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تمام برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ کی تصدیق کی اور اکثریت نے تکبر، مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر، شرک، انکار اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، اس قوم کی سرکشی کیا تھی اور اس عذاب کی شدت کیا تھی جو اس قوم پر نازل ہوا، اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ یہ عاد ارم کی اولاد میں سے ہیں، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب عبداللہ بن ربا بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام بتایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ روئے زمین پر 2 قوم عاد گزری ہیں۔ ایک عاد اولا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور دوسری عاد ثانیہ، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ان دونوں قوموں کے درمیان تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ نے اپنے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا۔ سیدنا ہود علیہ السلام تاجر تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تجارت سنت انبیاء علیہم السلام ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سفر حج کے دوران جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عصفان سے گزرے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وادی عصفان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر گزرے تھے، جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادر تھی، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت اللہ عتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام امانت داری اور توکل جیسے بڑے اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں ایک امانت دار تاجر تھے۔ جب قوم کے سامنے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی امانت داری کے حوالے سے فرمائیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ ناظرین، امانت داری تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا بنیادی وصف اور پسندیدہ انسانی صفات میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام خود بھی امانت دار تھے اور اپنی امتوں کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، اس میں مالی امانت بھی شامل ہے، وحی الہی کی امانت بھی شامل ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنا بھی شامل ہے، اور دوسروں کو ذمہ داری دیتے ہوئے اہلیت اور معیار کو پیش نظر رکھنا بھی شامل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تبلیغ رسالت میں آپ اپنی طاقتور اور ظالم جابر قوم سے بالکل خوفزدہ نہ ہوئے، اور ان سے صاف صاف فرما دیا کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق کو عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی،
और गुजरते वक्त के साथ साथ आपकी नस्ल मुबारक में इजाफा होता गया। अल्लाह ताला ने कौम आद को सल्तनत दी और बदनी कुव्वत भी वाफर अता फरमाई। शिद्दात बिन आद जैसा बड़ा बादशाह उन्हीं में से हुआ और जिस्मानी एतबार से ये लोग इंतहाई सेहतमंद, कवि और तवाना, बहुत लंबे कद वाले और बड़े भारी डील डोल वाले थे। उनके कदकार से मुताल्लिक कुरान करीम की सूरह फजर में इरशाद बारी ताला है कि जो अहले इरम थे और बड़े बड़े सुतूनों की तरह दराज कद और ऊंचे महल्लात वाले थे, जिनका मिसल दुनिया के मुल्कों में कोई भी पैदा नहीं किया गया। दोस्तों, मारूफ वाकया है कि आद के एक बेटे शद्दाद ने दुनिया पर बादशाहत की और रोए ज़मीन के तमाम बादशाह उसके फर्माबरदार हुए। उसने जन्नत का जिक्र सुनकर सरकशी के तौर पर दुनिया में जन्नत बनानी चाहिए और उस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया, जिसके महल सोने और चांदी की ईंटों से तामीर किए गए। याकूत और दीगर जवाहरात के सुतून उसकी इमारतों में नस्ब किए गए और उन्हीं से फर्श बनाए गए। संगमरमर की जगह अकीक मोती बिछाए गए। हर महल के गिर्द जवाहरात पर नहरें जारी की गईं और तरह तरह के दरख्त हुस्न तजम्मुल के साथ लगाए गए। जब ये शहर मुकम्मल हुआ तो शद्दाद बादशाह अपने ऐयान सल्तनत के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ। अभी ये लोग उस शहर से एक मंजिल यानी तकरीबन 18 मील फासले की दूरी पर थे कि आसमान से एक हौलनाक आवाज आई, जिससे ये सब हलाक हो गए। रिवायत में आता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन किलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहराए अदन में अपना गुमशुदा ऊंट तलाश करते हुए उस शहर में पहुंचे तो उन्होंने उस शहर की तमाम ज़ेबो ज़ीनत देखी, मगर वहां कोई मकीन ना पाया। रिवायत बताती है कि नेमतों की बहुतात के सबब कौम आद बड़ी खुशहाल और आरामदेह जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन उनमें कुफ्र, शिर्क और फिस्क व फुजूर की वबा फैली हुई थी। ये लोग तौहीद इलाही, इबादत खुदवांदी और इताअत रसूल छोड़कर मुख्तलिफ नामों से मौसूम अपने ही तराशीदा बुतों की पूजा में मशगूल थे। इसके अलावा ये सड़कों पर छोटी छोटी इमारतें बनाते, उन पर बैठकर लोगों से छेड़खानी और मजाक व मस्खरी करते। इनके तर्ज अमल से ये लगता था कि जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहना है। तूफान नूह के बरसों बाद सबसे पहले कौम आद ने तौहीद, रिसालत, ईमान और हिदायत से दूरी इख्तियार की और एक अरसे तक बदपरस्ती, कुफ्र, शिर्क, गुमराही, सरकशी, फिस्क व फजूर और गफलत व जहालत में मुब्तला रहे। इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। सूरा आराफ में इरशाद बारी ताला है, और हमने कौम आद की तरफ उनके कौमी भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत क्या करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम को वाज़े नसीहतें करते रहे। एक मौके पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया कि बेशक मुझे डर है कि तुम्हारे शिर्क और तौहीद से मुंह मोड़ने की वजह से कहीं तुम पर एक बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ और सिर्फ इसी की इबादत करो। इस वाक़ये को कुरान करीम की सूरा अहकाफ में यूं बयान किया गया है, और ए हबीब, आप कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए जब उन्होंने अपनी कौम को रेत के टीलों से डराया। हालांकि इससे पहले और उसके बाद भी कई डराने वाले पैगंबर गुजर चुके थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश न करना। मुझे डर है कि कहीं तुम पर बड़े हलाक करने वाले दिन का अजाब न आ जाए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर कौम आद ने कहा कि ए हूद, हमारे बाप दादा के दीन की तरफ हम पलट जाएं, ये तो हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, आपने जिस अजाब की हमें वहीद सुनाई है, अगर आप सच्चे हैं तो हम पर वो अजाब ले आएं। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह अहकाफ में यूं बयान किया गया है, उन्होंने कहा, ए हूद, हमारे बाप दादा के दीन की तरफ हरगिज पलटने वाले नहीं, और आपने जो अजाब की वहीद सुनाई है, अगर आप सच्चे हैं तो वो हम पर ले आएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब के नाजिल होने का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही को है, और वही इसके मुकर्ररा वक्त पर नाजिल फरमाएगा। मेरी जिम्मेदारी ये है कि अहकाम इलाही तुम तक पहुंचा दूं। दोस्तों, जब कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कबूल करने से इनकार करके
कुफ्र व शिर्क और गुनाहों पर इसरार को तरजीह दी तो इसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने उनकी सरजमीन पर 3 साल तक बारिश रोक दी, जिससे शदीद कहत पड़ गया और अल्लाह ताला ने उनकी औरतों को बांझ कर दिया। जब इस सूरत हाल से ये लोग परेशान हुए, मुसीबत की इस घड़ी में सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और तौबा व इस्तिग़फ़ार करने और ईमान लाने की सूरत में कहत से निजात की बशारत दी, लेकिन कौम ना मानी। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कौम आद में कहत साली नमूदार हुई तो उन्होंने कील नामी एक शख्स को बतौर कासिद मक्के मुकर्रमा के करीब बकर बिन मुआविया के यहाँ ठहराया। बकर ने इसे शराब पिलाई और इसकी 2 बांदियों ने कील के सामने गाना गाया। फिर कील मोहरा के पहाड़ों की तरफ निकला और वहां जाकर दुआ की कि ए अल्लाह, मैं किसी बीमार की दवा या किसी कैदी के फिदिये के लिए नहीं आया, बस तू अपने बंदे और उसकी कौम को बारिश का वो पानी पिला दे जो तू इसे पिलाया करता था, और इसके साथ बकर बिन मुआविया को भी पिला दे। कील ने अपनी दुआ में बकर बिन मुआविया को शराब पिलाने का शुक्रिया अदा करने के लिए शामिल किया था। रिवायत बताती है कि कुछ ही देर में इसके सर पर चंद बादल नमूदार हुए और इससे कहा गया कि इनमें से कोई एक बादल चुन लो। कील ने एक सख्त सियाह बादल चुन लिया तो इससे कहा गया कि तूने जली हुई राख ले ली। जब बादल कौम आद के करीब आए तो उन्होंने एक हौलनाक आवाज़ सुनी। फिर तुंदो तेज, निहायत सर्द, खुश्क, खैर व बरकत से खाली और सख्त सन्नाटेदार आंधी चल पड़ी, जिसकी शिद्दत का ये हाल था कि लोगों को ज़मीन से यूं उखाड़ देती गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के सूखे तने हों। फिर उन्हें सर के बल ज़मीन पर इस तरह मार देती कि सर पाश पाश हो जाते। इस हौलनाक तूफान की लपेट में जो चीज़ भी आती वो तबाही और बर्बादी का इबरतनाक निशान बनकर रह जाती। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही और जब ख़त्म हुई तो कौम आद के खाली मकान ही नज़र आ रहे थे, जबकि तमाम कुफ़ार नीज़ तो नाबूद होकर फना के घाट उतर चुके थे। दोस्तों, अब हम आपको इस अजीम सबक की तरफ रहनुमाई करते हैं जो इस किस्से से हमें मिलता है। कौम आद की तबाही हमें ये बताती है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी, तकब्बुर और शिर्क व कुफ्र का अंजाम हमेशा तबाही और हलाकत होता है। कौम आद को अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतें अता की, लेकिन उन्होंने उन नेमतों की नाशुक्री की और अल्लाह के रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया। इसके नतीजे में उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ जो उनके लिए इबरत का निशान बन गया। कुरान करीम ने इस वाक़े को कई मकामात पर बयान किया ताकि हम इससे इबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की इताअत और उसके रसूलों की पैरवी में गुजारें।